Good morning. Let others also join. Let's wait for 1-2 minutes. I think I should. I think I should start now. Although there are only 6 people here, but people will keep joining, and we will just start and continue. Okay. So as we were discussing determinants, we were discussing dividend and dividend policy, and today we are about to start the dividend policies determinants. That what all are those factors which are affecting, which affects, and we have to take into consideration before you can say drafting or framing the dividend policy in any organization. So these are all the factors which we have to keep in mind whenever we have to frame any dividend policy within our organization. So determinants, dividend policy of a company sets the guidelines to be policy of a company sets the guidelines to be followed while deciding the amount of dividend to be paid to the shareholders. Okay, we know that what is dividend, and dividend is distributed to whom. So basically डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की जो होती है दैट सेट्स द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड. उसमें गाइडलाइंस सब मेंशन होती हैं एंड कंपनी एंड एवरीबडी हैज़ टू फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड हैज़ एवरीबडी हैज़ टू follow whatever is given as guidelines or whatever is given as rule in the dividend policy while deciding the amount of the dividend to be paid out to the shareholders. कि dividend कितना पे होगा shareholders को और कितना फ्रीक्वेंसी पे हम रख रहे हैं कि हम पे करेंगे, एनुअली होगा या वो क्या अग्री हो रहा है, वो all things will be given or mentioned in the dividend policy, so that anybody who can refer the dividend policy document can understand that what exactly is the process of any particular company in order to pay the dividend to the shareholders. What amount, what percentage, whether it is fixed, it is not, and when it is to be paid. So the company needs to adhere to the dividend policy while deciding the proportions of the earnings to be distributed and the frequency of the distribution
both the things. Now company जो जिसने ये जो wherever the dividend policy we are studying or we are seeing for any company, the company is bound to follow the guidelines of that policy, and it's that is what it mentions, that the company needs to adhere the dividend policy. The company has to follow it. There is no other option. Policies are made to be followed, and there can be no chance that they are not following the given policy of their respective company itself. So, and there are now various types of dividend policies: regular, stable, constant, irregular, जो हम already types of policies में कल पढ़ चुके हैं. ये चारों थी जो हमने पढ़ी थी. Now, a company needs to analyze certain factors before framing their dividend policy. जैसे मैंने अभी बताया कि determinants ये factors होते हैं जिन्हें हम अपने mind में रखना पड़ेगा before framing any dividend policy. क्योंकि अगर ये पॉइंट्स को नहीं हमने अपने माइंड में रखा और हमने कोई भी डिविडेंड पॉलिसी को ऐसे ही विदाउट कंसिडरिंग दिस फैक्टर्स हमने डिविडेंड पॉलिसी अगर फ्रेम कर ली, तो हमें क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी को तो फॉलो करना ही है और गाइडलाइंस उसमें जो भी हम मेंशन करेंगे वो सब हमको करना पड़ेगा. और अगर हमने ये फैक्टर्स नहीं उनमें फैक्टर करके डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमाइन किया है, फ्रेम किया है, तो फिर हमारी डिविडेंड पॉलिसी हमारे लिए बेनिफिशियल शायद ना हो और हमें फ्यूचर में इस वजह से लॉसेस भी हो सकते हैं. और एक बार डिविडेंड पॉलिसी अगर बन जाती है तो फिर वो तो कोई भी पॉलिसी है कंपनी की वो फॉलो तो करनी है, कंपनी को तो करनी ही पड़ेगी. तो बिफोर फ्रेमिंग दिस पॉलिसी कैटेगोरिकली ओनली डिविडेंड पॉलिसी की बात करें, वैसे कंपनी में बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं. एन नंबर ऑफ पॉलिसीज कैन बी देयर इन दी company related to anything and everything, almost related to every process there is a policy in the company, and everybody has to abide that, everybody has to follow that. तो डिविडेंड पॉलिसी को फैक्टर करने के लिए हमें डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, वो ये सारे फैक्टर्स हैं. फर्स्ट इज टाइप ऑफ इंडस्ट्री. हम अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे कि हम कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हमारी इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट होते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेट होते हैं. हमारी कंपनी का क्या प्रोसेस है मैन्युफैक्चर करने का, या हमारी कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, हमारी कंपनी सर्विस इंडस्ट्री है, ये सारा कुछ मतलब टाइप में आ जाता है. क्योंकि अगर हमारी कंपनी रेगुलर प्रॉफिट्स अर्न करने वाला नेचर है ही नहीं हमारी कंपनी का, सपोज हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट ऐसा है या हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है जो कि ईयर ऑन ईयर बना ही नहीं पाते हम, बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता है, से 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है एक प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसको बेचने में ही, तो ऑब्वियसली फिर ईयर ऑन ईयर हमको प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता. और जब हमें रेगुलर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी भी नहीं रख सकेंगे. तो इसलिए टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट बिकम्स द फर्स्ट you can say determinant or the factor which impacts the dividend policy and how it is to be framed. Yeah, what kind of a policy it should be framed, it is depending upon the basic determinant जो है वो है टाइप ऑफ इंडस्ट्री की हमारी कौन सी टाइप है. ऑटोमोबाइल है, ट्रैवल है, क्या हम प्रोडक्ट कौन सा बनाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री तो नहीं है हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं कि जो जाकर 10 साल बाद मिलेगा. ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो 5 साल 10 साल ले जाता है बनने के लिए. जैसे रियल एस्टेट होता है, फ्लैट्स बन रहे हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं या ऑफिस एरिया बन रहा है, हमें उसको रेंट पे देना है या बेचना है. तो ये प्रोडक्ट तो ओवरनाइट बनेगा नहीं, 2-3 महीने में भी नहीं बनेगा. जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा बिल्डिंग का तब तक हम कस्टमर्स को बेच भी नहीं सकते. तो इसका मतलब हमें हर साल प्रॉफिट नहीं होने वाला, बल्कि शुरू के कुछ साल तो जब तक काम चलेगा हमें पैसा ही चाहिए लगाने के लिए, कैपिटल. तो रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें कि हम रेगुलर डिविडेंड अगर रखेंगे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम हर साल तो फ्लैट्स भी नहीं बेच पाएंगे. हर साल जो भी हम कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो हम ना तो सेल कर पाएंगे ना ही हम रेंट पर भी दे पाएंगे. मे बी आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत ह्यूज प्रॉफिट अर्न करें. हो सकता है कि एक साथ ही हम 10 साल का प्रॉफिट एक साथ अर्न कर लें,
लेकिन उससे पहले नहीं हो पाएगा, या उससे पहले अगर हो भी पाए तो एटलीस्ट रेगुलर नहीं हो पाएगा, राइट? सो द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री टू विच कंपनी बिलोंग्स टू हैज एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट on the dividend policy. Industries where earnings are stable may adopt a consistent dividend policy, जैसे कि stable dividend policy हमने पढ़ा या regular dividend policy हमने पढ़ा, वो हम तभी रख सकते हैं अगर हमारा नेचर इंडस्ट्री का ऐसा है कि हमारे प्रॉफिट्स भी स्टेबल हो रहे हैं, हमें मोर और लेस एवरी ईयर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज जहाँ पे कि बहुत अनसर्टेन है, अनइवन है, या ऑड टाइम पर हमें पता ही नहीं किस टाइम पर प्रॉफिट होगा या नहीं, तो हम वहाँ पर बेटर है कि हम वहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करें, या हम डिविडेंड पे आउट को वहाँ पर इरेगुलर अप्रोच से फॉलो करें या अनस्टेबल रखें थोड़ा सा, कि हम एनुअली every year at a fixed time we will not be able to disperse the dividend to the shareholders. Now second point becomes the ownership structure. The ownership structure of the company also impacts the policy. A company with a higher promoter holdings will prefer dividend payout, as paying out dividends may cause a decline in the value of the stock. देखो, प्रमोटर कौन होता है? वो पर्सन जो कि बेसिकली अपनी कंपनी को, या जो भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, जब कैपिटल चाहिए होता है, तो मार्केट में प्रमोट कर रहा होता है कि ये कंपनी इसने इतने इतने शेयर होल्डर्स को मतलब इनवाइट करा है, इतने शेयर्स को इनवाइट करा है, कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। तो अगर उस स्टेज पर कंपनी है और कंपनी के पास ओनरशिप का मतलब है कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल की टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो ओनरशिप ओन कैपिटल से आ रहा है या डिवेंचर कैपिटल से आ रहा है, तो वो भी हमें मैटर करता है कि अगर हमारा डिविडेंड हमें सिर्फ शेयर होल्डर्स पे पे करना है, अगर हमारी कैपिटल ज़्यादा डिवेंचर्स से है, तो हमारा ओनरशिप बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, यानी कि हमारी ओन्ड कैपिटल कम है, दूसरी कैपिटल ज़्यादा है। और ओनरशिप स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर इस तरह से ये भी है कि हमने अगर अपना कैपिटल जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स से ज़्यादा रेज किया हुआ है, और रेज करने के बाद हम किस स्टेज में हैं, कंपनी इज़ एट व्हाट स्टेज, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स दी dividend policy. Yeah, it is also one of the very important factors affecting the dividend policy to be framed within the organization कि क्या होनी चाहिए। Now एज ऑफ द कॉर्पोरेशन, एज ऑफ द कॉर्पोरेशन का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेशन की भी एज होती है क्या? यस, किसी भी कंपनी की या किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी फर्म की अगर हम बात करें, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक एज होता है। एज से यहाँ पर मतलब है कि कौन सी स्टेज पे है कंपनी। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोज कल ही रजिस्टर हुई है, लाइक इट इज़ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टार्टअप है, बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया है, या है न्यू कंपनी लेकिन बड़े लेवल पर ही स्टार्ट करने का सोचा था, ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड है, छोटे लेवल पे तो हमें छोटी कैपिटल चाहिए, बड़े लेवल में स्टार्ट करना चाहते हैं हमें बड़ी कैपिटल चाहिए, वो रिस्क के ऊपर है कि हम कितना, हमारा बिजनेस प्लान स्ट्रॉन्ग है और कितनी हमारा रिस्क टेकिंग फैक्टर भी हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है कि हम ज़्यादा कैपिटल को रेस करके हम वो रिस्क ले सकते हैं कि हम इनिशियल स्टेज में ही अपने ऊपर ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटी ले सकते हैं। कुछ है ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे लेवल पे या स्टार्टअप में स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करती हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हैं कि हम पहले थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। कुछ है कि बहुत ज़्यादा एकदम से एक्सपैंड करने के लिए ज़्यादा ह्यूज कैपिटल लेते हैं। तो अगर हमारी जो स्टेज है कंपनी की वो इनिशियल टाइम की है, तो हम ज़्यादा सोचते हैं ग्रोथ के बारे में, ज़्यादा सोचते हैं एक्सपेंशन के बारे में, तो वहाँ पर हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा नहीं चाहेंगे। इनिशियल स्टेज में हम डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए एज ऑफ द कॉर्पोरेशन का भी फैक्टर जो है इसको हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम इनिशियल स्टेज में है, न्यूली फॉर्म कंपनी है हमारी, यानी कि एज हमारी कंपनी की कम है अगर, या वी आर न्यूली फॉर्म या न्यूली रजिस्टर्ड, देन वी विल हैव टू रिटेन द मेजर पार्ट ऑफ आवर अर्निंग्स फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ईपीएस जो हमने पढ़ा था, इनकम स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा था पहले, जिसमें हमने अर्निंग्स पर शेयर हम निकाल रहे थे, और अर्निंग्स हम पर शेयर का मतलब हम कितना पे कर रहे हैं उनको पर शेयर पर, वो अमाउंट था। तो ईपीएस कैलकुलेट करने से पहले हम सारे अपने काम कर ले रहे थे, और जो रिटेन करना था हमें अर्निंग्स, वो भी हम पहले कर रहे थे। तो ईपीएस कैलकुलेट हम करते ही नहीं या करेंगे ही नहीं अगर हम, हमारी एज न्यूली फॉर्म कंपनी है हमारी, या हम इनिशियल स्टेज में है, तो हम क्या करेंगे, सारा प्रॉफिट्स को रिटर्न करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, और बहुत ही कम अमाउंट अगर हमें देना भी पड़ेगा, फॉर एग्जांपल टू सस्टेन, कि हमारे शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम ना हो या हमारा मार्केट वैल्यू भी सस्टेन रहे,
तो उसके लिए हम बहुत मे बी लो रेट का डिविडेंड पॉलिसी रख सकते हैं, या इरेगुलर रख सकते हैं कि जब हमें लगेगा कि हमारे पास प्रॉफिट एक्सपेंशन के बाद भी बच रहा है या थोड़ा ज़्यादा हम कर पा रहे हैं अर्निंग्स को सेव, तो हम डिविडेंड देंगे। अदरवाइज अगर हमें लगता है कि अगर हम ऐसे स्टेज पे हैं, हमारी एज ऑफ द कॉर्पोरेशन मतलब एक ऐसी स्टेज पे हमारी कंपनी पहुंच गई है जहाँ पे कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी रन कर चुके हैं, हमारे बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत सारी ब्रांचेज ओपन हो चुकी हैं, शायद हम ग्लोबल भी हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, तो वहाँ पर कंपनीज ऑफकोर्स ग्रोथ का तो हमेशा ही सोचती रहेगी कंपनी, एवरी टाइम जिस जिस भी स्टेज पर पहुँच जाए हम हमेशा एक्सपेंशन और ग्रोथ तो सोचेंगे। लेकिन एक लेवल अटेन करने के बाद हमें डिविडेंड को पॉलिसी को इस तरह से बनाना ही पड़ेगा, अपना मार्केट वैल्यू को वहाँ पर, क्योंकि हम रीच करने के लिए हमने बहुत ही मेहनत करी और अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट करा, तो वहाँ पर हम इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी नहीं रख सकते हैं। So we have to then understand कि what is our stage of the corporation, at what level our stage or what stage where our corporation has reached, and accordingly we will take the decisions about the dividend policy. Initial stage में irregular रख सकते हैं थोड़ा सा, बाद में जब हम settle हो जाएंगे एक तरह से business में, या प्रॉपर हमारा बिजनेस एवरीथिंग विल बी सेटल्ड एंड वी आर एट दी हायर ग्रोथ साइड और प्रॉफिट मेकिंग साइड, then we can distribute or disperse higher dividend. Next determinant will be the extent of share distribution. So the company with a large number of shareholders will have difficult time in asserting or agreeing them to agree for a conservative policy. On the other hand, a closely held company, no chances of succeeding to finalize conservative dividend payouts. देखिए, कंजर्वेटिव एक चीज़ होगी और एक चीज़ होगी कि हमने बहुत ज़्यादा ओपन तरीके से हमने अपनी पॉलिसी को रेगुलर या स्टेबल वाली पॉलिसी को रखा हुआ है, फ्रेम किया हुआ है। तो एक्सटेंट ऑफ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास एक ह्यूज कैपिटल भी हम कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से निकाल देते हैं। जैसे कि ये कैसे होगा, कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कब होंगे, जब एक ही आदमी ज़्यादा अमाउंट खरीदेगा, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा शेयर एक ही आदमी के पास आ गए, तो हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ कैपिटल भी कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से आ गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर कंपनी के ऊपर रिस्क है या लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फेथ नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाता है एक आदमी, और थोड़ा थोड़ा पैसा या शेयर्स वो खरीदते हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे शेयर्स का या कैपिटल का, वो ब्रॉड हो जाता है। ब्रॉड कैसे होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है, होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स बेसिकली जो हैं वो ज़्यादा होगा। कि मतलब 10 लाख रुपया हमें इन्वेस्ट सपोज करने के लिए चाहिए, तो 10 लाख रुपया 10 लोगों से भी आ सकता है अगर वो 1-1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और 10 लाख 100 लोगों से भी आ सकता है अगर वो 10-10 हज़ार शेयर करना चाहते हैं, राइट। कम अमाउंट अगर कोई शेयर कर रहा है तो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस तरीके का, हमारा शेयर डिस्ट्रीब्यूशन किस एक्सटेंट तक का है, ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं कि कम शेयर होल्डर हैं। लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं तो उन सबको एक ही, मतलब बहुत सारे जहाँ लोग होते हैं ना, उनको डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना किसी भी चीज़ के लिए, नॉट जस्ट फॉर डिविडेंड बट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। जितने लोग होंगे उतने ही ज़्यादा उनके माइंड्स होंगे, उतने ज़्यादा माइंडसेट होंगे, उतने ज़्यादा ओपिनियंस होंगे, और उतने ही ज़्यादा उनको आर्ग्यूमेंट्स करने के भी हमारे पास चांसेस आते हैं कि लोग हमसे क्वेश्चनिंग करें। तो वहाँ पर कंजर्वेटिव पॉलिसी का होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर हम चाहें कि हमें रेगुलर पॉलिसी रख लें, वो मुश्किल है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा शेयर डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल का है, ब्रॉडर है, कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, और वो शेयर होल्डर्स हैं किस लेवल के, जिन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट किया है वो किस लेवल के, किस एज के हैं। अगर हम थोड़ा सा R&D कर लें तो डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करने में ईजी होगा। जैसे कि हमें अगर ये पता चल जाए कि हमारे शेयर होल्डर्स मोस्टली किस पर्टिकुलर एज के हैं, ज़्यादा पर्टिकुलर एज के हैं, तो उनसे ना तो हम बहुत ज़्यादा बहस कर पाएंगे, ना उनको अपनी ही कुछ मे बी जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, या अगर हम कंजर्वेटिव पॉलिसी रखना है तो उनको हम अग्री नहीं करा पाएंगे। दे ओनली नो अबाउट देमसेल्व्स, अबाउट देयर मनी, कंपनी के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। वेयर एज अगर यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कैपिटल भी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो लोग रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर इरेगुलर पॉलिसी ये थोड़ी सी अनस्टेबल चल जाएगा, ठीक है। तो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन एक डिटर्मिनेंट इसलिए बनता है क्योंकि
लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर है हमारे पास शेयर होल्डर्स का, वो हमें एक तरीके से हमें पता चल जाता है, और किस लेवल के हमारे शेयर होल्डर्स हैं उसके हिसाब से हम डिविडेंड पॉलिसी बना लेते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। नाउ हर शेयर होल्डर की अपनी अपनी अलग अलग होती है एक्सपेक्टेशन। जैसे कि डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट लोग आ रहे हैं, ना तो एक फैमिली के लोग हैं हमारे शेयर होल्डर्स, ना ही एक जगह के लोग हैं हमारे शेयर होल्डर्स। डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट स्टेट से, हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज से भी आ रहे हों, डिफरेंट फैमिलीज बैकग्राउंड से, डिफरेंट इनकम ग्रुप से लोग आते हैं जो हमें पैसा देते हैं। अब हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी सोच हमारी फैमिली के हिसाब से भी होती है, आप अग्री करेंगे। हम सबकी अपनी फैमिली है, हम सबका अपना एक कल्चर है, एक लाइफ है, लाइफ स्टाइल है जो हम जी रहे हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट्स उसी के हिसाब से। अब हम क्या काम कर रहे हैं, वो हमने क्या सोच के किया है, वो हमारा डिसीजन है। हर किसी शेयर होल्डर का सेम डिसीजन होगा, सेम एक्सपेक्टेशंस होंगी कंपनी की, ये ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट ही होंगी इनफैक्ट। डिफरेंट शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मे बी एक्सपेक्टेशंस आर मोर। सो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स द पॉलिसी इज द diversity in the type of the shareholders a company has. Obviously, any company would have different or diversified shareholders. It will have diversified employees. हर एम्प्लॉय का भी अपना अपना डिफरेंट बैकग्राउंड है। जैसे अब हमारी क्लास में वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट हैज़ गॉट इट्स ओन लाइफ स्टाइल, इट्स ओन बैकग्राउंड। हर कोई यहाँ पर आया है स्टडी करने के लिए इंजीनियरिंग, उनका अपना एक अलग गोल होगा और इस डिग्री से एक अलग एक्सपेक्टेशन भी होगा। कुछ लोग चाहते होंगे कि मैंने तो ये डिग्री सिर्फ इसलिए करनी है बिकॉज माई पेरेंट्स वांटेड। कुछ लोगों के लिए डिग्री मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट, दे मस्ट बी, इट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम। So, different group of shareholders will have different expectations. Retired shareholders will have different requirement of a wealthy investor. Now, the company needs to clearly understand the different expectations and formulate a successful dividend policy. ये वाला जो मैंने एग्जांपल आपको जैसे भी एजेड लोगों का दिया था या रिटायर्ड लोगों का दिया था, वो यहाँ पर भी है एक एग्जांपल इसमें भी है कि उनकी एक्सपेक्टेशन का लेवल ही अलग होगा। द पीपल हु हैव गॉट से हायर एज, उनका वो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग फैक्टर कम रहेगा उनमें, और वो चाहते हैं कि जहाँ हमने इन्वेस्ट किया हमें एक फिक्स्ड इनकम, रेगुलर इनकम मिलती रहे वहाँ से। लिवरेज, लिवरेज हम टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, किस डिग्री का लिवरेज, हम क्या हम ऐसा एक्टिविटी करते हैं बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स इन आवर। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिवरेज अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ेंगी। अगर बढ़ पा रही हैं लिवरेज की वजह से, तो हमें ऑब्वियसली डिविडेंड को थोड़ा देना ही पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट हाई लेवल पे करना पड़ेगा। और अगर नहीं है, हमारे पास अर्निंग्स ही कम है, हमको लिवरेज भी नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट कैन बी एट अ लोअर रेट। इट कैन बी इन द सेंस कि कोई भी शेयर होल्डर अग्री तो नहीं होगा इजीली कम हाई लो डिविडेंड पे, बट अगर हमारी पॉलिसी इस तरह की कि हम फ्रेम कर लेंगे जिससे कि मोर और लेस हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारा भी बेनिफिट में है वो पॉलिसी, और टू सर्टेन एक्सटेंट हम, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हम शेयर होल्डर्स को भी तो पढ़ रहे हैं, उनका भी एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्रेम करेंगे तो मोर और लेस वो भी एग्री करते हैं। क्योंकि एक बार पॉलिसी अगर बन गई तो फिर एवरीबडी हैज़ टू फॉलो दैट। ओके, सो फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है। फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ या मेरी कंपनी है, फॉर एग्जांपल या आपकी कंपनी है, आपको लगता है कि मैंने एक्सपेंशन करना है, इस साल में मैंने एक नया ऑफिस खोलना है, या कोई किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, या कोई बहुत बड़ी मशीनरी मुझे मेरी बिजनेस में चाहिए जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ा सकूँ मैं, इंपोर्ट करना है, किसी दूसरी कंट्री से ख़रीदना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा ऑफकोर्स। तो अगर मैं अपनी रिटेंड हैं जो अर्निंग्स हैं उनको रिटेन करके और इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करना चाहती हूँ, या एक इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो फिर वो क्या करेगी, वो उसको डिविडेंड को लेस करेगी, मतलब पे, और अर्निंग्स को रिटेन करेगी बाय डिक्लेयरिंग दैट वी आर रिटेनिंग दिस अमाउंट ऑफ अर्निंग बिकॉज ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट समझ आएगा, फ्यूचर में अगर हमें कुछ भी पैसे से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है,
है तो हम उसको रोक लेंगे पैसे को, अर्निंग्स को, वरना हम डिविडेंड को थोड़ा हायर रेट पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो डिविडेंड पे आउट विल ऑल्सो बी डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स फॉर द एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल हमको दो ही स्टेजेस में चाहिए होती हैं. कैपिटल जनरली जो है रेस करने के लिए, तब जब हमारी नई ऑर्गेनाइजेशन है और हमें स्टार्ट करना है, कुछ भी ऑपरेशंस होता नहीं, काम नहीं चल रहा और हमें स्टार्ट करनी, तब हमें कैपिटल चाहिए होगी. या फिर हम काम कर रहे हैं, करते 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 हमको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन करना है, या ह्यूज एक तरीके से कुछ एक एक्सपेंशन करना है, या मे बी कोई नया प्रोडक्ट ही अपना नया लॉन्च करना है, या नया ऑल टुगेदर वर्टिकल स्टार्ट करना है, या नया ऑल टुगेदर हमको एक ब्रांच में भी आउटसाइड कंट्री इंस्टॉल स्टार्ट करना है, कुछ भी ऐसा. तो या तो स्टार्ट हो रही कंपनी तब, या एक्सपेंशन के टाइम तब, दो चीज़ों में हम कैपिटल रेज करते हैं. बाकी छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम कैपिटल जनरली रेज नहीं करते, क्योंकि उस टाइम तक कंपनी इतना कैपेबल हो जाती है कि कुछ ना कुछ अर्निंग्स कर रही होती है, और अर्निंग से ही अपना रूटीन वर्क जो है वो अपने खर्चे एक्सपेंसेस सब निकाल लेती है. नाउ बिजनेस साइकिल, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज बिजनेस साइकिल. when the company experiences a boom, देखिए साइकिल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी और किसी भी इकोनॉमी में भी. अगर हम एक कंट्री की भी बात करें तो जैसे मार्केट की भी एक स्टेज होती है, जिस स्टेज में से हम बोलते हैं जैसे कि मार्केट बहुत अप जा रहा है, सब कुछ मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, वो सिचुएशन होती है बूम. तो एक तरीके से ये सिचुएशन बूम की सिचुएशन हो गई कि जब मार्केट में सब कुछ बहुत अच्छा है, पैसा भी लोगों के पास बहुत है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लोग खरीदने के लिए भी तैयार हैं, इनकम भी बहुत अच्छी हो रही है, और जो कंपनीज हैं उनके पास भी अच्छा पैसा है, इन्वेस्टर्स हैं, पैसा उनको भी मिल रहा है, वो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मार्केट में सब कुछ अच्छा से बिक भी रहा है, और मतलब लोग खरीद भी रहे हैं, और सेलिंग भी हो रहा है बाय द कंपनीज. वो सिचुएशन होगी बूम, जिसमें एवरीथिंग विल बी हाई, एवरीथिंग, लोगों के पास पैसा भी बहुत है, हैप्पी भी हैं वो लोग, कंपनीज आल्सो इन गुड टाइम एंड दे आर प्रोड्यूसिंग गुड प्रोडक्ट्स. वो हो गया बूम. कभी कभी किसी रीज़न की वजह से मार्केट डाउन आने लगता है, एकदम से डाउन बिल्कुल ज़ीरो पर नहीं आ जाता, धीरे धीरे मार्केट की चीज़ें कम होने लगती हैं, लोगों के पास पैसा में भी कम है, या इकोनॉमी किसी भी एक्सवाइजी रीज़न की वजह से डाउन जाने लगती है, जा रही है, या जीडीपी फॉल करता है जैसे उस टाइम पे, और एक सिचुएशन नीचे नीचे आते आते एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मार्केट में बिल्कुल रिसेशन आ जाता है, जॉब्स की भी कमी है, इन कंपनीज भी बहुत वेल डू नहीं कर रही हैं, गवर्नमेंट हमारी पूरी कंट्री के पास इस तरीके से एक सिचुएशन आ गई जिसमें कि कुछ भी काम नहीं हो रहा. जैसे अभी ये रिसेशन आया है, बहुत बड़ा रिसेशन मार्केट में कोविड की वजह से आ गया था, मार्च अप्रैल में बिल्कुल बंद हो गया, अप्रैल वॉज कम्प्लीटली डाउन, नो बडी वॉज वर्किंग एट ऑल. बिल्कुल जब हमेशा कम्प्लीटली लॉकडाउन था, कंट्री वॉज कम्प्लीटली लॉकडाउन, तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था. जब काम ही कुछ भी नहीं हो रहा था, ना कोई पर्सन कहीं जा पा रहा था, ना कुछ अर्न कर पा रहा था, और ना ही मार्केट्स भी खुल रहे थे, हमने कितना बैरली शॉपिंग करा है, बिल्कुल बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं सिर्फ उन्हीं को करा था हमने. तो वो सिचुएशन हो गया रिसेशन का. ये मार्केट सिचुएशंस हो गई, बूम, रिसेशन एंड ऑल. तो ये होगा कि पूरी एंटायर कंट्री या पूरा एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सिचुएशंस होती है. और अगर हम इसको लेवल पे बात करते हैं बिजनेस के, तो वो बिजनेस साइकिल होगी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम चल रहा है. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मतलब इंडस्ट्री बहुत हाई है, लेकिन उस इंडस्ट्री की कोई एक फर्म है, कोई एक कंपनी जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है. जैसे कि हम लेते हैं इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसमें मारुति है, गाड़ी बना रही है अपनी, हिंडे गाड़ी बना रही है, होंडा गाड़ी बना रही है, बहुत सारी है, और भी अदर फर्म्स या कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट्स बना रही है. लेकिन उनमें से कोई एक सपोज फिएट करके एक है एक फर्म, उसकी गाड़ियाँ नहीं बिकी टू अ पर्टिकुलर, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, स्पेसिफिक टाइम. तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन फिर अपना डिविडेंड पॉलिसी चेक करेगी कि वो कौन सी स्टेज पे है बिजनेस साइकिल की, बूम पे चल रही है, या डिप होने वाला है, रिसेशन में चल रही है, कि उसकी कोई भी इनकम इस बार नहीं हुई, मे बी कई बार ऐसा होता है फेलियर हो जाता है किसी कंपनी का, कोई गाड़ी लॉन्च करते हैं, नहीं बिकती है वो गाड़ी, उसके कंपैरिजन में मार्केट में और दूसरी गाड़ी बहुत सारी बिक जाती है. तो डिपेंड करता है कि हमें अपनी बिजनेस साइकिल को भी देखना है कि हमारी कंपनी बूम पे है, तो हम सबको अच्छे से सर्विस देंगे, हम अप्रेजल्स भी अच्छे करते हैं एम्प्लॉयज़ के, हम डिविडेंड भी फिर लोगों को अच्छा देंगे, शेयर होल्डर्स को. तो डिविडेंड पॉलिसी में बिजनेस साइकिल समझ आए किस तरह से इम्पैक्ट करती है, कि अगर हम बूम पे हैं तो देन वी कैन
always choose to pay more dividend to the shareholders. But if we are at the recession or we makes the reserves for debt, so such reserves will help the company to declare high dividends even in depressing markets to retain or attract more shareholders. जनरली कंपनी जब बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स पे होती हैं तो वो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स अगर कभी आनी होती हैं या ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन जिसके लिए वो तैयार नहीं है, पता नहीं है कि क्या होगा फ्यूचर में, उसके लिए कंपनी अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है। ऑब्वियसली जब हमारा गुड टाइम होता है, जैसे हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, हमारा सैलरीज अच्छा है, काम अच्छा चल रहा है, तो हम ऐसा नहीं है ना कि पूरी सैलरी अपनी ख़त्म कर देते हैं, खर्च करते हैं। हम कुछ ना कुछ उस टाइम में सेविंग भी करते हैं। किस टाइम के, जब कभी फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ आ जाए तो हम एटलीस्ट अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। तो सिमिलर फैशन में कंपनीज विल ऑल्सो डू द सेम, कि अगर जब हमारे पास अभी जैसे कोविड में कितने लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, सैलरीज नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी खर्चे कुछ जो बेयर मिनिमम थे वो तो हम कर ही रहे थे ना। तो वो कहाँ से हो रहा था? वो हमारे खुद के ही रिजर्व से हो रहा था। हमें अपनी सेविंग्स में भी सेविंग्स को करा, हमने खर्च किया, जो भी करा। तो बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द डिविडेंड पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ भी चीज़ को कंट्रोल करने में। जो भी किसी भी कंट्री में कोई भी काम हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी होती है कि वो कंट्रोल कर सकती है। कैसे? कुछ भी चीज़ अगर किसी कंपनी के बारे में कंट्री को या गवर्नमेंट को लगता है कि दिस इज़ नॉट हैपनिंग करेक्ट, या दिस शुड हैपन इन अ बेटर वे, या दिस इज़ अनएथिकल एंड दिस शुड नॉट हैपन, ये प्रैक्टिस को स्टॉप करना है, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी निकाल देती है कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, आज से ऐसा होगा, एवरीबडी हैज़ टू डू दिस। सो दोज आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज। एवरी सिटीजन, एवरी कंपनी जिसके लिए भी वो पॉलिसी बनी इज़ बाउंड टू फॉलो दैट। नहीं होगा तो भाई देयर इज़ अ लॉ, जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स हैं, फिर आपके अगेंस्ट केसेस होंगे और आपको वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं फॉलो करोगे तो उसके अगेंस्ट जो पनिशमेंट है वो करनी पड़ेगी, या भाई सीधा जेल जाओगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर अपनी कुछ चेंज कर रही है और कुछ गाइडलाइंस हमारे लिए बना रही है, तो उनको भी हमें फॉलो करते हुए अपनी डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करना पड़ता है। तो चेंज अगर कुछ हो रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी में, तो हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल इनफ भी करना होता है कि हमें वो चेंज भी करना है। चेंज इन द सेंस कि जो भी चेंजेस गवर्नमेंट हमें बोल रही है लाने के लिए अपने सिस्टम में, एज फार एज डिविडेंड इज कंसर्न या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो उसको इनकॉर्पोरेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, और हम फ्लेक्सिबल इनफ होने चाहिए कि हम ये काम कर भी पा रहे हैं, कर रहे हैं। तो देयर कुड बी चेंज इन द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ कंपनी ड्यू टू द इम्पोज चेंजेस बाय द गवर्नमेंट। मेरी पॉलिसी है, मेरी कंपनी की पॉलिसी है फॉर एग्जाम्पल, जो विच वी आर फॉलोइंग, और एनी फर्म हैज गॉट इट्स पॉलिसी, बट गवर्नमेंट ने अपनी कुछ गाइडलाइंस अगर चेंज कर ली तो फिर हमें भी चेंज करना पड़ेगा उसके हिसाब से, वरना नहीं चल पाएगा आगे इस तरह से। एंड इंडियन गवर्नमेंट देन will have a, they can also sometimes put some temporary restrictions in the company, on the companies to pay dividend। ये एक लाइव एग्जांपल है कि 74-75 में कंपनी ने कंट्री की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया था इम्पोज, कुछ गाइडलाइंस चेंज की थी डिविडेंड पॉलिसी, सो दैट कंपनी के लिए चेंज कर, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस चेंज की जिसकी वजह से सभी कंपनीज को या कुछ कैटेगराइज्ड कंपनीज को अपनी डिविडेंड पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी। वो 74-75 की बात है। ऐसा हो जाता है बहुत बार जब कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, या कोई एक स्ट्रॉन्गर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसे हम बोलते हैं, कंपनीज या एम्प्लॉयर्स, वो तो रिच हैं ही हमेशा, तो वो एक्सप्लॉयट करना भी एट लेवल पे शुरू कर देते हैं। जैसे कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज टाइम पे नहीं देना, या कम सैलरीज देना, कम मजबूरी है किसी की तो कम सैलरी भी उसको बुला के रख लिया कि ठीक है ये काम तुम कर लो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ता है तो कंपनीज क्या करती हैं, लो लेवल पे भी लोगों को हायर कर लेती हैं। ऐसे शेयर होल्डर्स को भी बोल देती हैं कि हमारे पास डिविडेंड अब पैसा है नहीं, अभी हम नहीं दे रहे। अब शेयर होल्डर्स कुछ कर तो सकते नहीं है, इक्विटी वाले ना अपना पैसा वापस ले सकते, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा प्रिंसिपल भी मिलेगा, और डिविडेंड पे अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं हम नहीं दे रहे हैं, तो फिर कोई एक अथॉरिटी होना चाहिए ना जो उस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो वो गवर्नमेंट करती है उस टाइम पे। बहुत, जैसे आपको पता होगा, एक एग्जांपल और भी मिल जाती है, एम्प्लॉयज़ का जो है इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए मार्केट में
गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है कि इस स्टेट में इस इतना मिनिमम वेज से कम कोई सैलरी दे ही नहीं सकता है कोई भी कंपनी। अगर आपको हायर करना है ग्रेजुएट, उसको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। आपको हायर करना है एक अंडर ग्रेजुएट, उसको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। तो वो, लेकिन बहुत सारी कंपनी है जो वो भी फॉलो नहीं करती हैं और इलीगल तरीके से इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं, तो वो एक्सप्लॉइट करती हैं लोगों को। तो इसी तरह से डिविडेंड के लिए भी वो शेयर होल्डर्स को भी एक्सप्लॉइट करती हैं और कर सकती हैं। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी इमीडिएटली निकाल देती है अगर उसको ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में या अच्छे लेवल पे अब हो रहा है, तो वो फिर चेंज करती है अपनी पॉलिसीज। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी एक्सप्लेनेटरी कि ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड। हमारे पास अगर प्रॉफिट है ही नहीं, नो प्रॉफिट है, तो फिर हम नो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर देंगे। दिस ईयर वी हैड नो डिविडेंड और नो प्रॉफिट, सो देयर वुड बी नो डिविडेंड। वी विल सी नेक्स्ट ईयर, अगर प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो पुराना क्लेम भी नहीं कर सकते हैं अपना। जैसे किसी अगर एक ईयर में बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट, आप लोगों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, रीअपियर के एग्ज़ाम्स हैं। मॉर्निंग में यस तो नहीं मैम। हो, मॉर्निंग में तो नहीं होता होगा ना बेटा, इस लेक्चर पे होता है, इस लेक्चर स्टार्ट के हो टाइम। जाता मैम सुबह से। Danish, I think management is will take certain decisions on this attendance for those days. तभी आप लोगों की लिस्ट भी बनाई जा रही है कि आप लोग कब कब रीअपियर कौन कौन कर रहे हैं, so that attendances and everything may be given to you guys later on, or maybe we can claim it in फ्रॉम दी मैनेजमेंट की अगर हमें प्रॉब्लम होता है कि हमने ये सारे एग्जाम्स दिए थे इसलिए हम लेक्चर नहीं कर पाए। तो अभी जो फैकल्टीज़ को गाइडलाइंस हैं मैनेजमेंट की तरफ से वो यही हैं कि जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं लेक्चर्स, हमें रेगुलर लेक्चर्स लेने हैं और छुट्टी नहीं देनी है। अगर जो भी स्टूडेंट्स अटेंड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं कर पा रहे हैं और उनका एग्ज़ाम्स है तो उनकी अटेंडेंस का हमें क्या करना है आगे, वो मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। हो सकता है आपको अटेंडेंसेस मिल जाएँ बाद में। जहाँ तक इसका है लेक्चर का है, आप मुझे फ़ोन पर भी पूछ सकते हो कोई टॉपिक, अदरवाइज़ ये रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग यूट्यूब पर मैं वैसे भी अपलोड ऑनलाइन कर ही रही हूँ हर लेक्चर के बाद एवरीडे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो अटेंडेंस का जो है पहले अपने एग्ज़ाम्स रीअपियर के जो है इसको ठीक तरीके से अच्छे से दे लीजिए विदाउट एनी टेंशन फॉर अदर थिंग्स, क्योंकि उस पर फोकस ज़्यादा करिए बिकॉज यू गाइस आर इन फाइनल ईयर और ये मुश्किल हो जाएगा अगर क्लियर नहीं होगा आप लोगों के लिए। डिग्री 4 ईयर्स में ही होनी चाहिए, तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस करिए आप। इसकी अटेंडेंसेज और इन सब चीज़ों का आप मैनेजमेंट से बाद में भी क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि 2-4 लोगों का रीअपियर है, बाकी सारे स्टूडेंट्स की क्लास नहीं ऑफ मैं कर पाऊँगी, तो क्लासेस हम ऐसे ही चलने देते हैं। और अटेंडेंस की जहाँ तक बात होगी वो मैनेजमेंट आपको आई थिंक प्रोवाइड करेगी ही, जिन लोगों का ऑब्वियसली आप लोग दोनों जगह तो नहीं हो सकते क्लास में और एग्ज़ाम में, दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका डिसीजन मैनेजमेंट आपको बेनिफिट इसका कुछ ना कुछ दे देगी आपको, ठीक है। बट फॉर नाउ कोई भी क्लास ऑफ रीअपियर की वजह से होगी ऐसा नहीं होगा, ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं सभी को, स्टूडेंट्स को भी शायद दिए हैं और फैकल्टीज़ को भी दिए हैं मैनेजमेंट ने। सो आई एम रियली सॉरी, उस चीज़ में मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगी। लेक्चर्स विल टेक प्लेस द वे दे आर टेकिंग प्लेस। इफ़ यू आर मिसिंग समथिंग आई एम ऑलवेज देयर, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, कॉल एनी टाइम, और हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे। वी आर एनी हाउ रनिंग फास्ट ऑन आर सिलेबस, वी हैव ऑलमोस्ट कवर 70% ऑफ द सिलेबस ऑफ आवर्स। एक ही यूनिट हमारा बचा है जो, और हमारे पास टाइम अभी काफ़ी है, 2 मंथ्स का हमारे पास टाइम है, तो हम दोबारा भी इन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेंडेंस आपको मैनेजमेंट ने देना चाहिए शायद, ठीक है। और किसी को कुछ डिस्कशन करना है इसके अलावा? ठीक है दानिश, इज़ दैट क्लियर नाउ? और किसी को कुछ डिस्कशन करना है तो बताइए। आप लोगों की कल भी एक क्लास है, फिर सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है। नहीं, जस्ट 1 minute इज़ लेफ्ट, सो मैं फिर ये
प्रॉफिटेबिलिटी के बाद से जो भी है कल की क्लास में ये डिस्कस करके डिटर्मिनेंट्स एंड एवरीथिंग, आई एम मूविंग स्लो। अभी ये डिविडेंड जो टॉपिक है इससे मैं थोड़ा स्लो चलने लगी हूँ, सो दैट यू गाइज आर नॉट मिसिंग मच, बिकॉज आई नो कि रिलेटेड के एग्जाम्स हैं, तो मैं बहुत स्लो आपको कवर कर रही हूँ सिलेबस अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसे कवर काफ़ी कर चुके हैं। एक ही यूनिट बचा है, वो भी जल्दी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल गाइज फॉर योर एग्जाम्स। कुछ उससे रिलेटेड इश्यूज भी अगर आपको हैं तो अपने टीचर्स से आप प्लीज़ फैकल्टी से डिस्कस करिए। ओके, अटेंडेंसेस का इतना टेंशन मत लीजिए, ये सब हो जाएगा, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, बाय बाय।